یسوع ناصری کے لیے زوردار تالیاں بجائیے. خدا باپ بیٹے اس کے لیے زوردار تالیاں. ہاللویا ہاللویا. خدا یسوع اور خداوند کا شکر ہے، خدا کام کر رہا ہے. کلام مقدس میں سے میرے ساتھ نکالیے متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان. متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان، اس کا 6واں باب، اس کی 16ویں سے 18ویں آیت مقدسہ پر آج ہم غور کریں گے. متی جو ہے وہ محصول لینے والا تھا، اور اس کے نام کا مطلب جو ہے خدا کی بخشش، گفٹ آف گاڈ. اس تک جو انجیلی پیغام جو ہے وہ ہم تک اور آج آپ تک پہنچا. 6 باب کی 16ویں 17ویں اور 18ویں آیت مقدسہ یہاں پر لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. آمین. کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو. کتاب مقدس کے وسیلے ہم سب برکت پائیں. روزے کے بارے میں یہاں پر تعلیم جو ہے وہ مجھے اور آپ کو ملتی ہے روح القدس کی رہنمائی میں. اور بائبل کہتی ہے جب تو روزہ رکھے. کب؟ جب تو. وین ایور، جب بھی. یہ کوئی سال بعد کی بات نہیں ہے، سال بعد کی بات نہیں ہے. یا سال گزرے گا یا سال، پورا سال ہم انتظار کریں گے کہ کب روزے آئیں گے اور ہم روزے رکھیں گے. بائبل مقدس کی تعلیم بڑی واضح اور کلیئر ہے. جب بھی تو روزہ رکھے، جب بھی تو روزہ رکھے، تو سوار والے دن روزہ رکھے، منڈے کو روزہ رکھے، ٹیوزڈے کو روزہ رکھے، ویڈنسڈے کو روزہ رکھے، فرائیڈے کو روزہ رکھے، جب بھی تو روزہ رکھے. آمین آمین آمین. آمین. لیکن ہم میں سے بہت سارے جو ہیں وہ سال پورا انتظار کرتے ہیں کب روزے آئیں گے اور ہم روزہ رکھیں گے. اور جب روزے آتے ہیں تو پھر پہلا رکھ دے رہے ہیں، پھر اس تو بعد غائب، پھر وہ آخری گڈ فرائیڈے والا رکھ دے رہے ہیں، پھر اس تو بعد غائب. یا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے ہر فرائیڈے رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد غائب. لیکن بائبل مقدس کی تعلیم بڑی سمپل، بڑی کلیئر اور بڑی واضح. اور وہ تعلیم یہ ہے جب بھی تو روزہ رکھے، جب بھی تو روزہ رکھے. یہ کچھ سال بعد روزوں کا انتظار کرنے کی بات نہیں ہے. یہ پہلے مہینے میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں، دوسرے مہینے، تیسرے مہینے، چوتھے مہینے، اور پورا سال کے کسی بھی مہینے، کسی بھی دن میں اور آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. آمین 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 آمین. آمین. اور بائبل کہتے ہیں جب بھی تو روزہ رکھے، جب بھی تو روزہ رکھے. رکھے. اور اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں ذرا آپ کو یہ جو 40 ڈیز کی فاسٹنگ ہے، 40 روزوں کا کانسیپٹ ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. جب میں اور آپ متی ہی کی انجیل جب اس کا 4واں باب دیکھتے ہیں تو یہاں پر کلام مقدس فرماتا ہے، پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا، پہلی، دوسری اور تیسری آیت. یہاں پر 40 ڈیز کی فاسٹنگ جو ہے وہ مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے. اور یہاں پر لکھا ہے اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی. کتنے دن؟
40 दिन और 40 रात। ये जो हम साल बाद 40 रोजे रखते हैं, वो यीशु के इस काम से, यीशु मसीह के जो इस बियाबानी सफर से, जिसमें वो बियाबानी सफर में गए और बियाबानी सफर में जाने के बाद रूह कुदस उन्हें ले गया, और रूह कुदस उन्हें ले गया, और 40 दिन और 40 रात वो वहां पर फाका करते हैं। 40 दिन और 40 रात वहां पर फाका करते हैं। और 40 दिन और 40 रात फाका करने से मुराद ये है, ये नहीं जे राती 12 बजे खा लिया तो शाम को 6 बजे खोल लिया, नहीं। 40 दिन और 40 रात फाका करने से मुराद ये है, यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात ना रखे डेली रोजा ते ना खोले डेली रोजा। एक ही रोजा जो है वो 40 दिन तक मुसलसल चलता रहा है, और 40 दिन और रात के बाद यीशु को जब भूख लगी तो तब उन्होंने खाना खाया। आमीन, 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 आमीन। और अब यीशु ने 40 दिन का फाका किया, और मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं, 40 दिन का फाका जो है वो एक रोजा है, 40 रोजे नहीं है, क्योंकि डेली रखा नहीं जानता, डेली खोलिया नहीं सी जानता। एक शुरू हुआ है और एक शुरू होकर 40 दिन के बाद खत्म हुआ है, और इसलिए हम कह सकते हैं एक रोजा है जो 40 दिन का है। आमीन, आमीन। 40 दिन फाका किया, और हम इंसान हैं, हमसे ये पॉसिबल नहीं है। और फिर इस बात को मद्देनजर रखते हुए 40 रोजों का आगाज हुआ, 40 रोजों का आगाज हुआ। बहुत सारे लोग इन दिनों इसकी बड़ी मुखालफत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 40 रोजे नहीं रखने चाहिए, 40 रोजे नहीं रखने चाहिए, नहीं होने चाहिए। कोई डांस करदा पिया जे जेड़ा मना करदे पे हो, कोई गालां कढदा पिया जेड़ा मना करदे पे हो, नो। कोई बदकारी जनाकारी करदा पिया जेड़ा मना करदे पे हो, नो, नो। रोजे रखदा पिया ना ते रखण दवो। उच्ची आवाज से कहो आमीन, 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 आमीन। जेड़े काम मना करने चाहिए ने वो मना ही करदे नहीं पे, ते सोशल मीडिया ते यूट्यूब ते व्यूज लैण वास्ते एवं जिहड़ी मर्जी गल फड़ के उहदे ते गल करना शुरू कर देने। जब अच्छा काम हो रहा है तो होने दें। लोग चलो जो सारा साल जो वैसे रोजा नहीं रखते, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बाइबल की इस तालीम के साथ मुत्तफिक हूं जिसमें लिखा है जब भी तू रोजा रखे, हम पूरा साल रोजा रख सकते हैं, हम पूरा साल रोजा रखे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं जो लोग साल का इंतजार करते हैं और इन रोजों के अयाम में रोजे रखते हैं, उन्होंने भी रखन दो, वो मना ना करो, क्योंकि वो अच्छा काम कर दे पे। आमीन, आमीन। कोई बुरा काम नहीं कर रहे। जो रोजा रख रहा है उसे रखने दे। और फिर मैंने आपको बताया 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह ने फाका किया, और फिर उसके बाद जब मैं और आप खरूज 34वां बाब उसकी 28वीं आयत मुकद्दसा देखते हैं तो वहां पर मूसा, मुकद्दस मूसा मुझे और आपको नजर आता है, और वो कोई सीना पर है। खुदा ने उसे बुलाया है ताकि उसे 10 अहकाम दे, लोहे दे, और वो वहां पर है, और वो 40 दिन और 40 रात वहां पर भूखा रहा, बगैर खाए पिए उसने वहां पर टाइम स्पेंड किया, 40 दिन और 40 रात। और आपको बताता चला जाऊं, फिर उसके बाद जब वो लूहे लेकर नीचे आया, और लूहे लेकर नीचे आया तो आगे नाच रंग हो रहा है, बुत परस्ती हो रही है, और उसे गुस्सा आता है और वो लूहे जो है वो तोड़ देता है। और जब वो लूहे जिन पर खुदा के अहकामात लिखे थे, 10 अहकाम लिखे थे, तोड़ देता है, तो खुदा फिर से उसे वापस बुलाता है, और जब फिर से वापस बुलाता है तो फिर 40 दिन और 40 रात वो वहां पर रहता है, और फिर खुदा उसे कलाम देता है। फिर कितने दिन? 40 दिन और 40 दिन और 40 रात। और अब 40 यहां पर नजर आ रहा है, डिजिट ऑफ 40 जो है, या 40 का अदद जो है, और मैं आपको बताना चाहता हूं 40 का अदद जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का अदद है, तब्दीली का अदद है, तैयारी का अदद है। आप देखें यीशु मसीह एक बड़ा मिशन जो उनके जिम्मे लगा था, उसको पूरा करने से पहले वो 40 दिन और 40 रात जो है वो फाका कशी करते हैं।
यहां पर इससे पहले कि मूसा को 10 अहकाम मिलते, मूसा जो है वो 40 दिन और 40 रात खुदा की हजूरी में रहता है। बाद च गुस्सा कर दावे, गुस्सा करके खुदा दा कलाम जड़ा वो तोड़ देता वे, लूहे तोड़ देता है। और अब जब फिर जाता है तो हालांकि पहले दे दिया गया था कलाम, अब ये नहीं हुआ कि अल्लाह फाड़ो दी कॉपी फाड़ते चला जा, अब फिर 40 दिन और 40 रात लगते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं 40 दिन और 40 रात क्यों लगते हैं? क्योंकि 40 का अदद जो है वो तब्दीली का अदद है। मूसा से गुस्सा आ गया, मूसा ने गुस्सा किया, मूसा ने खुदा के कलाम को तोड़ दिया, गुस्से में खुदा के कलाम को रद्द कर दिया, वो उस पर उसके साथ कायम ना रह सका। और इसलिए खुदा फिर से 40 दिन और 40 रात लगाकर फिर से उसे तब्दील करता है, फिर से उसे पाक करता है और फिर दोबारा से उसे कलाम देता है। आमीन आमीन। और आप देखें, एक माँ जब वो प्रेगनेंसी के अंदर गुजरती है तो आफ्टर 40 डेज उसे पता चलता है कि मुझे खुदा ने बरकत दे दी है। फिर 1.25 महीना 40 डेज तब्दीली का आदत। कौन सा आदत? तब्दीली का, तब्दीली का आदत, प्रेपरेशन का आदत, तैयारी का आदत। और उसके बाद जब मैं और आप आगे बढ़ते हैं तो सलातीन की किताब जब मैं और आप देखते हैं, पहला सहीफा उसका 19वां बाब उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा, यहां पर एलिया नजर आता है। और एलिया जो है उसे खाना खिलाया जाता है, फरिश्ता आता है और खाना खवांदा, कहता खा, रज के खा, क्योंकि इस तो बाद तू 40 दिन ते रात भुखा रहना में। और पूरब के पहाड़ की तरफ उसने जाना था और उसे खाना खिलाया जाता है और फिर वो 40 दिन और 40 रात भूखा रहता है। इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर 40 दिन के रोजे जो हैं वो कलीसियाए या आलमगीर कलीसिया के अंदर जो है वो मुकर्रर हुए। आमीन आमीन। लेकिन फिर भी मसीही कलीसिया जो है वो इन 40 रोजों तक महदूद नहीं। कोई ये ना कहे कि सिर्फ 40 रोजे पाए मैं ओदे ही रोजे रखने ने, उस तो अलावा मैं रोजे रखने नहीं। याद रखिए, कलीसिया जो है वो किसी भी दिन रोजा रख सकती है। आमीन आमीन। कलीसिया किसी भी दिन रोजा रख सकती है। मैं और आप बाउंड नहीं है, मैं और आप पाबंद नहीं है कि साल बाद रोजे रखेंगे और खुदा हमारे हालात तब्दील करेगा, हमें पाक करेगा। मैं और आप जब जब जरूरत महसूस करें कि मुझे पाकीज़गी की जरूरत है, मुझे खुदा की कुर्बत की जरूरत है, मुझे खुदा की नजदीकी की जरूरत है, मुझे खुदा के पास जाने की जरूरत है, आप रोजों में ठहर जाएं, खुदा आपकी जिंदगी तब्दील कर देगा, आपका स्पिरिचुअल लेवल तब्दील कर देगा। आप स्पिरिचुअल रैलम में बढ़ते 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 चले जाएंगे और आपके लिए आसमान जो खुदा का अच्छा खजाना है खुल जाएगा। आमीन आमीन आमीन। आप रोजा किसी भी वक्त रख सकते हैं, रोजा किसी भी वक्त रख सकते तो आपको समझ आ गई 40 रोजे कहां से आगाज हुए? हैं। यस। यस्सु ने कितने रोजे रखे? एक 40 दिन का, पक, ऊंची आवाज में 40 दिन का, एक रोजा, 40 दिन का। एक रोजा। बाइबल मुकद्दस में 40 दिन का मूसा का रोजा नजर आता है। वो कितने दिन दा है? 40 दिन और 40 रात। एक रोजा कितने दिन दा? 40 दिन और 40 दिन और 40 रात। ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਐਸਾ ਡਿਨਰ ਆਂਦਾ ਸੀ खूबसूरत, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह के बारे में जब पढ़ते हैं, फरिश्ते खिदमत के लिए आए लेकिन डिनर लेके नहीं आते, नाश्ता लेके, नहीं सी आंदे, लंच बन के नहीं सी आंदे। नहीं सी ले आंदे। आमीन आमीन आमीन। आमीन। 40 डेज एंड नाइट भूख और प्यास में काटे। और मैं फिर से आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जरा गौर करिए, यहां पर लिखा है, सॉरी मैं उसको दोबारा से पढ़ दूं चौथे बाब को। और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, भूख लगी, आखिर को उसे भूख लगी, भूख लगी। और इससे ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। फिर उसने आजमाइशें की, मैं अभी इस पे बात नहीं करूंगा, मैं भी अपने टॉपिक पर रहकर बात करना चाहता हूं। रोजे पे 3 तरह की आजमाइशें यीशु मसीह की होती हैं उसी टाइम पे, और खुदा का शुक्र है यीशु मसीह गालिब आता है। आमीन आमीन, क्योंकि वो खुदा है। और अगर मैं और आप भी रोजों में जिंदगियां गुजारने वाले हैं, इब्लीस हमारे सामने भी आजमाइशें लेकर आएगा, लेकिन मैं और आप कलाम की कुदरत से, यीशु की कुदरत से इब्लीस की हर एक प्लानिंग पर, हर एक धोखे पर गालिब आएंगे। आमीन आमीन।
आमीन। रोजों के अंदर बड़ी कुवत है। रोजे जो हैं वो हालात बदल देते हैं। रोजे दुआएं हालात बदल देती हैं, आसमान खोल देती हैं, घराने के घराने बदल देती हैं, और वो काम जो नामुमकिन है वो मेरे और आपके लिए मुमकिन हो जाते हैं। रोजे जो हैं वो खुदा के इरादों को भी बदल देते हैं। रोजे खुदा के इरादों को बदल देते इरादों को बदल देते हैं। रोजे खुदा के फैसलों को बदल देते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिएगा तवज्जो के साथ, खुदा के बारे में कहा जाता है वो ला तब्दील खुदा है। वो कौन सा खुदा? ला तब्दील। ला तब्दील खुदा मतलब एक बारी उन्हें जड़ा फैसला कर लिया, एक बारी जड़ा उन्हें फैसला कर लिया, वो उन्हें करके रहना में। लेकिन अगर मैं और आप रोजे रखते हैं, दुआ करते हैं, तो खुदा भी अपने फैसले करने पर मजबूर हो जाता है, और वो फैसले बदल देता है और मेरा और आपका भला कर देता है। मुल्कों का, सल्तनतों का, नेशंस का, शहरों का भला कर देता है। आमीन 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 आमीन। आमीन। रोजे खुदा दे फैसले बदल देते हैं। बदल देंदे ने। ये नहीं खुदा कमजोर पै जाता है। खुदा खुश होता है कि मेरे हुजूर में जब गिरे आजारी हो रही है तो मैं इनकी दुआ पर कान लगा लूं। आमीन 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 आमीन। और फिर जरा वापस आइए, यहां पर हम गौर करेंगे छठे बाब में। यहां पर लिखा है और जब तुम रोजा रखो, वेन एवर यू फास्टिंग, जब तुम्हें जरूरत हो, जब घरानों की हालत तोड़ फोड़ का शिकार हो, जब बिजनेस जो है वो लॉस में जा रहे हो, जब बच्चे नाफरमानियों का शिकार हो, और तुम रोजा रखो, और तेरा खुदा तेरे घराने को, तेरे बिजनेस को, तेरे कारोबार को, तेरे घर के मेंबर्स को और तेरे घराना की हालत को बदल देगा। जब भी तुम रोजा रखो, जब आपको लगे हम लानत में जा रहे हैं, जब आपको लगे हम मुसलसल नुकसान उठा रहे हैं, जब आपको लगे हमारे लिए मुसलसल दरवाजे बंद हैं, तो तब दुआओं और रोजों की तरफ रुख करिए, और फिर देखिए खुदा की कुदरत आपकी जिंदगियों में आश्कारा होगी, और वो सब कुछ बदल के रख देगी, तब्दील करके रख देगी। आमीन आमीन आमीन। आमीन। आज बहुत सारे लोग रोजा रखने के लिए तैयार है, नहीं है, अपनी जान दुख देने तैयार है, नहीं है, वैसे बड़े दुख उठा लेंगे ने, लेकिन दुआ ते रोजे का दुख नहीं उठाते। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, कलीसिया चर्च, आप किसी बात से तंग आ गए हुए हैं, आप मजबूर हो गए हुए हैं कि ये हालत बदल ही नहीं रही, तो रोजियां च ठहर जाओ, दुआ च ठहर जाओ। आमीन आमीन। तो रोजे वो वाले नहीं, रखिया होया रोजा तो सारा दिन रीलें वेखनियां ने, रोजा वो वाला नहीं। हम में से बहुत सारे रोजे रखते हैं लेकिन दुआ नहीं करते साथ। रोजा रख के दुआ नहीं करते। मैं आपको बताऊं, अगर रोजा रख के साथ दुआ भी की जाए ना कि 2 4 5 घंटे, तो मैं आपको बताऊं हमारे रोजे, हमारी दुआएं जो हैं वो शहर के शहर हिला के रख दें, आमीन। घरानों को हिला के रख दें। रोजों और दुआओं के अंदर ये कुवत है, लेकिन असी जो रोजा रखने तो दुआ नहीं करने, तो एक दिन 2 घंटे दुआ कर लिए तो फिर अगला हफ्ता दुआ नहीं करनी। यह साडा मसला है। आप देखिए कईयों ने 12 घंटे दुआ की, पिछला हफ्ता 7 दिन दुआ की, 24 घंटों में दुआ में शामिल हुए, उसके बाद अब कितने लोग दुआ कर रहे हैं रेगुलर रूटीन के साथ? वेरी गुड, वाह सारे ने, हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं। आमीन। करते रहें, जो नहीं कर रहे वो भी करें। दुआ कोई ऐसा अमल नहीं है जड़ा एक बारी कर लिया तो फिर महीना ब्रेक ले ली, फिर हफ्ता ब्रेक ले ली। बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? प्रे विदाउट सीजिंग, और उर्दू में बिला नागा दुआ करो, बगैर नागे तुम। दवाई लैन जाने हैं ना, दवाई लैन जाने हैं ना, कहते ना बगैर नागे तो खानी जे, नहीं तो कोर्स फिर शुरू होना में। और स्पेशली टीबी की दवाई आई थिंक सो होता है, टीबी की दवाई में होता है ना, हाँ जी। वो होता है जी 6 महीने दवाई खानी है, तो जदों तुसीं विचों ना खाधी तो कोर्स फिर की होएगा? रिपीट होएगा, दोबारा तो शुरू होएगा।
और बाइबल मुकद्दस कहती है बिला नागा, जिस तरह बीमारी के इलाज के लिए बिला नागा दवाई खाई जाती है, अपनी हेल्थी ग्रोथ के लिए, हेल्दी जिंदगियां गुजारने के लिए, स्पिरिचुअली हेल्दी होने के लिए मुझे और आपको बिला नागा दुआ करने की जरूरत है। और बिला नागा दुआ के साथ साथ रोजे भी रखे जाएं तो आप देखिएगा खुदा सब कुछ तब्दील करके रख देगा। आमीन। जब भी तू रोजा रखे, जब भी तू रोजा रखे, और जब रोजा रखे तो फिर दुआ करनी है। फिर क्या करनी है? दुआ करनी। और दुआ के साथ साथ रियाकारों की तरह मुंह उदास अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने काम किया जाए तो कहते तेनू नहीं पता मेरा रोजा है, तेनू नहीं पता मेरा रोजा। जानबूझ के बैठे होंगे, हाय बड़ा रोजा है, हाय रोजा लग गया, हाय मेरा की हो गया। ठीक है, वो बड़ा बड़ा कुछ करते हैं, उन्होंने काम किया है, तानू पता ही नहीं है मेरा रोजा है। ठीक है, एवं दसते फिर यार मेरा रोजा, अज मैनू काम नहीं करना, आज मेरा रोजा है, मैनू काम नहीं करना। बाइबल कहती है रियाकारों की तरह हरकतें नहीं करनी, अपने आप को नहीं बताना, अपना आप नहीं बताना कि मैं रोजे के अंदर हूं। रोजा रखे है आप जाने और आपका खुदा जाने। आमीन, 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 आमीन। और यहां पर पोशीदगी की बात है, यहां पर सीक्रेट की बात है, यहां पर हिडन करने की बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब बाइबल मुकद्दस का बगौर मताला करते हैं तो 5 चीजें हैं जो खुदा का कलाम कहता है कि हिडन रखनी चाहिए। कितनी चीजें? 5 चीजें। ऊंची आवाज में कितनी चीजें? 5 चीजें। क्योंकि रोजा है तो एक तो रोजा है, पहली चीज जो पोशीदा हमारी जिंदगियों में होनी चाहिए वो रोजा है। दूसरे नंबर पर जो हमारी जिंदगियों में हमें पोशीदा रखना है वो हमारी चैरिटी है, खरायत है। खरायत करके मैंने और आपने बताना नहीं है। बाइबल में कदस में लिखा है 6 बाब की दूसरी आयत में, बस जब तू खरायत करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं अपना अजर। और नीचे लिखा है बल्कि जब तू खरायत करे तो जो तेरा दहना हाथ करता है बायां ना देखे। इसका मतलब खरायत, चैरिटी जो है, गिविंग जो है वो सीक्रेट होनी चाहिए। आमीन, आमीन। पहले नंबर पर क्या सीक्रेट होना चाहिए? रोजा। दूसरे नंबर पर क्या सीक्रेट होना चाहिए? खैरात। साडा हदिया देना, मदद करना दूसरों की, ये सीक्रेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सीक्रेट। आपको पता कई लोग जो हैं वो चर्च में हदिया कैसे डालते हैं पता है? दिखा के नहीं, जानते कढ़ देने पर सारे के सामने कढ़ देने, फिर वहांदे ने, फिर इंज करके ते फिर पांदे ने। और कम से कम चंदे वाले नूं तो जरूर पता चल चुकिया होंदा है कि इन्हें 50 पाया, 100 पाया या 1000 पाया। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, हमारे हदिये सीक्रेट होने चाहिए। हमारे हदिये सीक्रेट होना चाहिए, छुपा के। क्या करके? छुपा के। कई मरतबा ये भी ख्याल आता है, अच्छा चल नुक्कर ही बाहर रख दे, पता चल जाए हरा नोट है कि नीला नोट है। हैं? कई हाथ भी लपेट लेते ने, लेकिन जान के थोड़ा जिहा बाहर रहन देंदे ने ताकि पांदियां पता चल जाए कि मैं चंदा कितना पाया वे, मैं चंदा कितना पाया। अजर खो चुके, अजर हो गया, आज चंदा भी पा देता, लबना भी कुछ नहीं, कुर्बानी भी दे देती है, फिर भी कुछ नहीं मिलना, रिजल्ट नहीं मिलना। याद रखिए, बीज कब उगते हैं? जब उसे हिडन छुपे, जदों उत्ते उत्ते पे होंदे ने। नो, जमीन में बोए जाते हैं, जब नहीं, छुपे हुए, जब जमीन में दबा दिए जाते हैं, दब जाता है। जब जमीन में दब जाता है, दब जाने से मुराद अब नजर आना बंद हो गया है। और जब बीज नजर आना बंद हो जाता है तब वो दरख्त बनना शुरू होता है, तब वो उगना शुरू होता है, और जो उगता है वो फिर फल लाता है। हम में से बहुत सारे उनके बीज सारी जिंदगी ऐसे ही रहते हैं कि नजर आते रहें, और जिनके बीज नजर आते रहते हैं वो कभी भी फलदार नहीं होते, वो कभी भी दरख्त नहीं बनते। हमारे रोजे सीक्रेट होने चाहिए, हमारी खरायत, हमारी गिविंग सीक्रेट होनी चाहिए, हिडन होनी चाहिए। उसके बाद हमारी दुआएं पोशीदा होनी चाहिए।
हमारी दुआएं, पोशीदा होने ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਸ਼ੀਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਸ਼ੀਦਾ ਦੁਆ से मुराद ये है दुआ करके ਐਵੇਂ ਟੰਡੋਰਾ ਨਾ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ दुआ करने। ਕਈ ਉੱਠ ਕੇ ਐਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਜੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਉਹ ਯਾਰ मैं दुआ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ इंज हो गया। उन्होंने आके खुद ही बता दिया मैं दुआ कर रहा था, किसी ने पूछा भी नहीं है दुआ का, उन्होंने आके खुद से बता दिया। अपना अजर खो चुके। हमारे रोजे सीक्रेट होने चाहिए, हमारी चैरिटी, हमारी खैरात, हमारी गिविंग सीक्रेट होनी चाहिए, हमारी दुआएं सीक्रेट होनी चाहिए, हमारे नेक काम जो हैं वो सीक्रेट होने चाहिए। बाइबल मुकद्दस में नेक कामों के ताल्लुक से 2 रेफरेंसेस मुझे और आपको मिलते हैं। मत्ती की इंजील 5वां बाब उसकी 16वीं आयत, वहां पर लिखा है तेरे नेक कामों को देखकर लोग तेरे बाप की जो आसमान पर है क्या करें, तमजीद करें। यहां पर ऐसा है कि हमें अपने नेक काम दिखाने हैं, नेक काम दिखाने हैं। लोग देखेंगे तो हमारे बाप की तमजीद करेंगे ना। तो दिखाने किस सूरत में है? अपने आप को बड़ा करने के लिए नहीं, अपने बाप की तारीफ के लिए मैंने और आपने नेकी करते चले जाना है। कई लोग अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को प्रोमिनेट करने के लिए नेक काम दिखाते हैं। और फिर दूसरा हवाला जब मैं और आप मत्ती 6वां बाब उसकी पहली आयत मुकद्दसा देखते हैं तो यहां पर लिखा है खबरदार अपनी रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। कौन से काम? राष्ट्रबाजी के काम। हमारी राष्ट्रबाजियां जो हैं वो सीक्रेट होनी चाहिए। आमीन, आमीन। हमारी राष्ट्रबाजी के काम सीक्रेट होने चाहिए, हिडन होने चाहिए। और फिर हमारा आसमानी बाप जो पोशीदगी में हमें देखता है वो हमें बदला देगा। आमीन। और 5वीं बात जो सीक्रेट होनी चाहिए वो हमारी रोया हैं। रोया जो खुदा मुझे और आपको देता है, वो हमारे ख्वाब हो सकते हैं, वो पर्सनल रेवोल्यूशन हो सकते हैं जो खुदा हमें देता है। कई लोग उन्होंने कोई गल ज़हन च आंदी है ते हले पूरा होंदा पता नहीं कदों दौर होंदा है, वेला होंदा है, उस तो पहले ढंडोरा पिट देंदे ने। उस तो पहले ही पंजाबी च एक मिसाल कही जाती ही पानी हले 100 कोत ते तंबा पहले चुक लिया। मतलब इस तरह से ना पंजाबी में वो बोलते होते थे, दादाजी से मैं अपने सुनता होता। ऐसे ही है ना, पानी हले ख्वाब आया वे, खुदा ने पता नहीं हले कदों काम करना वे। उन्हें सारे पिंड च ढंडोरा पिट छड़िया, रिश्तेदारों दस छड़िया ओ ऐ होन लगा जे, मैं वेख्या जे, इंज होना जे। सीक्रेट आपके ख्वाब, आपकी विजन्स हिडन होनी चाहिए। जब खुदा का वक्त आएगा, जब वो ऐन वक्त आ जाएगा, जब खुदा का मुकर्रा वक्त आ जाएगा, उस रोया के पूरे होने का, ख्वाब के पूरे होने का सारे नो आप ही पता चल जाएगा। आमीन, आमीन। और आपको याद है मैंने बहुत देर पहले आपको एक बात बताई, मैंने किसी राइटर को पढ़ा, उसने कहा खामोशी से इतना काम करें, खामोशी से इतना काम करें, इतना काम करें कि आपकी कामयाबियां जो हैं वो चिल्ला चिल्ला के बोलें कि यह कामयाब हो गया जे, ये बाबरकत हो गया जे, ये सरफराज हो गया जे। हमारी कामयाबी खुद ही बता देगी, खुद बताने की जरूरत नहीं है। वो पाई मैं कामयाब हो गया जे, ओ मैं सरफराज हो गया जे, ओ मैं कर लिया जे, ओ मैं कर लिया जे, बताने की जरूरत नहीं है। जब मैं और आप कामयाब होंगे तो हमारी कामयाबी खुद नजर आना शुरू हो जाएगी कि ये बाबरकत है, ये सरफराज है, इसने तरक्की की है, ये बढ़ गया है, खुदा ने से बरकत दी है। आमीन, आमीन। टंडोरा नहीं पिटना, रौला नहीं पाना। 5 चीजें जो हैं वो हिडन होनी चाहिए। हमारे रोजे, हमारी चैरिटी, हमारी गिविंग जो है वो पोशीदा होनी चाहिए। उसके बाद हमारी दुआएं जो हैं वो पोशीदा होनी चाहिए। उसके बाद हमारे नेक काम जो हैं वो पोशीदा होने चाहिए। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता हूं, आप कंफ्यूजन का शिकार ना होइएगा। ये नहीं है कि सारे नेक काम और छुप छुप के करने ने। जब आप नेक काम करें तो मकसद अपने आप को प्रोमिनेट करना ना हो, खुदा को ऊंचा और सर बुलंद करना हो। और बाकी अगर अपने आप को प्रोमिनेट करने का जहन आता है तो खुदा को फौरन माफी मांगो, खुदा
میں نے اپنے بارے میں سوچا کہ میں نظر آؤں, مجھے معاف کر دے, میں تجھے اونچا اور سر بلند کرنا چاہتا ہوں. اور کتنی خوبصورت بات ہو, یوحنا کا اقرار میرا اور آپ کا اقرار ہو. وہ کہتا ہے ضرور ہے کہ وہ بڑے اور میں گھٹوں, وہ نظر آئے اور میں چھپ جاؤں, تو بڑھتا چلا جا اور میں کم ہوتا چلا جاؤں. آمین. آمین. اور پھر یسوع کہتے ہیں جتنے بھی عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں یوحنا ان سب سے بڑا ہے. وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہے, یسوع نے اسے دنیا کے سارے انسانوں میں سب سے زیادہ بڑا کر دیا, پرومیننٹ کر دیا. جو اپنے آپ کو چھپائیں گے خدا انہیں بڑا کرے گا, جو اپنے آپ کو چھوٹا کریں گے وہ بڑے کیے جائیں گے. آمین. اور پھر پانچویں چیز, اپنی رویائیں, ویژنز, اپنے ڈریمز جو ہیں ان کو سیکرٹ رہنے دیں. آمین. 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 اور پھر آئیے واپس اسی پورشن پر چلتے ہیں. یہاں پر لکھا ریاکاروں کی طرح صورت اداس نہ بنا, کیونکہ وہ اپنا منہ تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے, لوگ ان کو روزہ دار جانے, لوگوں کی پرواہ نہ کریں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میرے روزے ہیں, لوگوں کو پتا چلے کہ میں روزے رکھ رہا ہوں. خدا کو پتا چلنا چاہیے کہ میں روزے رکھ رہا ہوں, اور خدا کو پتا تب چل جائے گا جب میں روزہ رکھ کے پاکیزگی کی زندگی گزارتا ہوں. ہمارا پرابلم کیا ہے, روزے رکھ کے انسان سارے نو پتا چل جاندے نے, خدا نو پتہ ہی نہیں ہوندا کہ نے روزہ رکھیا ہے, کیونکہ سارا دن تے موبائل یوز کیتا ہے, سارا دن تے موبائل یوز کیتا, روزہ رکھ کے سارا دن تے کیا ہے, تینوں نہیں پتا میرا روزہ ہے, مینوں کام نہ کہیں. سارا دن روزہ رکھ کے بیڈ توڑے ہے, سارا دن روزہ رکھ کے بیڈ توڑے ہے, منجی توڑی ہے, LCD ویکھی ہے, تو ہے کہ یہ روزہ. ایسا روزہ خدا کو پتا نہیں چلے گا, لوگوں کو پتا چل جائے گا, گھر والے سارے نو پتا ہوئے گا, ہائے میرے لاڈلے پتر دا روزہ, اج پکوڑے تلنے نے ہیں, اج یہ سیویاں بنانیاں نے, اج یہ ہے کرنا ہے, کیونکہ یہ کی یہ روزہ. لیکن خدا نو کوئی نہیں یہ پتا چلے گا. نہ دعا کی ہے, نہ خدا کو جلال دیا ہے, نہ گیت گایا ہے, نہ پاکیزگی کی زندگی گزاری ہے, نہ دنیا سے علیحدگی اختیار کی ہے, نہ ٹی وی سے الگ ہوئے ہیں. وہی سارے کام جڑے عام روٹین سے کرنے سا روزہ رکھ کے بھی وہی کرنے ہیں. کچھ تو فرق آئے, کچھ تو فرق آئے. اور جب کچھ فرق آئے گا تو پھر لوگ نہیں, پھر آسمانی باپ روزہ دار جانے گا. اور جب آسمانی باپ روزہ دار جانے گا تو یہاں پر لکھا ہے تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے گا, تجھے بدلا دے گا. جب خدا مجھے اور آپ کو روزہ دار جان لے گا پھر خدا مجھے اور آپ کو برکت بھی دے گا. آمین. 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 اور پھر منہ نہیں بگاڑنا, صورت اداس نہیں بنانی, اور پھر جب روزہ رکھنا ہے اپنے سر پر تیل لگانا ہے, تو بہت سارا بن لا لینا ہے, جو واگدا ہوئے تو پھر بھی پتا چل جائے میرا روزہ سی, میرا روزہ سی, مطلب دس دینا کہیں نہ کہیں طریقے کہ میرا کی سی, روزہ سی. اینڈ تیل واوا روڑیا ہوئے, اینڈ واگدا ہوئے, وہ کی ہوئے اج اینا تیل, او یار اج روزہ رکھیا ہی تو بائبل چ لکھیا تیل لائیں واوا سارا, تو دس دیتا پھر کہ میرا اج روزہ سی. سیکرٹ رہنے دے, کیا رہنے دے, سیکرٹ, کیا رہنے دے, سیکرٹ. تیل لگائیں, فریش میں اور آپ نظر آئیں, منہ پہ رونق ہو, شادمانی ہو, خوشی ہو. آمین. 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 پھر ہمارا باپ جو آسمان پر ہے وہ مجھے اور آپ کو روزہ دار جانے گا اور ہمیں اجر دے گا. اور روزے کا اجر یہ ہے, روزے جو ہیں وہ خدا کے فیصلوں کو تبدیل کر دیتے ہیں. آمین. ہم مزید ان دنوں سارے ہم یہی سیکھیں گے, اور مختلف طرح کے روزے جو بائبل مقدس میں ملتے ہیں ہم ان کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے روزے جو ہیں وہ برکت اور تازگی کا سبب ہیں. آمین. آمین. آئیے اپنی آنکھیں بند کریں اور خدا ان کو کہیں خدا ہمیں ببلیکل روزہ رکھنے کا فضل دے دے.